So now because I'll go to recording mode. So now अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे द 3 layers of the uterus, है कि नहीं? So it's very very important, the 3 layers of the uterus. Now इसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान देना है, जो 3 layers है, तो अब उसपे अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? अब उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. Now we will now go into what? The details. Okay? तो अंदर और क्या क्या चीज मिलेगा? So the drawings we saw yesterday actually clearly, the different layers, the bacillus layer and etc. were not visible, but otherwise we saw the things. Okay? चलिए, तो अब हमने यूट्रस डिस्कस कर लिया. So now next अभी हमारा क्या रह जाएगा? So now we will go and discuss the what? So we will go and discuss the the uterine. Fallopian tube. Yes, उसको uterine tubes या fallopian tubes कह सकते हो. चलिए, so this is the uterine tubes या fallopian tubes. ठीक है, uterine tubes और fallopian tubes. Now, so again ये बने आपका one pair होगा. So this is one pair of tissues, माने ट्यूब्स, क्योंकि ये दोनों तरफ होगा, तो इसलिए टोटल क्या होगा? 2 होगा. So that is the case. Now 2 uterine tubes or oviducts extend laterally from the uterus. ठीक है, तो यूट्रस से 2 ट्यूब्स आपका एक्सटेंड करता है. Now the tubes, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे. फाइन. So now the tubes which measure about 10 centimeter lie between the folds of broad ligaments of the uterus. Okay. Now they provide a route for sperms to reach an ovum and transport the secondary oocytes. तो secondary oocyte actually क्या है? Ovum. है कि नहीं? And fertilized ova from the ovaries to the uterus. ठीक है? Now, तो इसलिए इधर से स्पर्म जाएगा वेजाइना साइड से उधर, एंड उधर से आपका जो ओवरी साइड से एग, खाली एग आएगा आप लोगों में, एंड आपका जो प्रेग्नेंट लेडीज में क्या आएगा? आपका zygote. The funnel shaped portion of each tube called the infundibulum is close to the ovary but is open to the pelvic cavity. Okay, is open to the pelvic cavity through a small opening known as what? Ostium. ठीक है, तो इसलिए वो pelvic cavity में खुलता है through an ostium. Now it ends in a fringe of finger-like projections called fimbriae. Okay, so called fimbriae. Okay, तो ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, one of which is attached to the lateral ends of the ovary. ठीक है ना, तो इसलिए ये फिम्ब्रेटेड एंड क्या होगा? ये चारों ओर ओवरी के होगा, घूमेगा, ढूंढेगा. हाँ, इट विल सर्च फॉर द एग. ना इसलिए हम लोग या फ्रॉम ओवरी साइड आ रहे हैं. ओके, इधर हम लिख सकते हैं फ्रॉम ओवरी साइड. ओके, तो हम लोग ओवरी साइड से आ रहे हैं. तो सबसे पहला क्या आ गया आपका? इनफंडिब्यूलम. ओके, उसके बाद इनफंडिबुलम में ही आपका फिम्ब्रेटेड एंड होता है. From infundibulum, the uterine tube extends medially and eventually inferiorly and attaches to the upper outer corners of the uterus. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम बीच में लिखेंगे, बाहर लिखा हुआ है एक्चुअली. सो द एम्प्यूला, इसको कट करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे. The ampulla of the uterus. Okay.
तो द एम्पुला, इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज 1 फ्रॉम द ओवरी साइड आपका इन्फंडिबुलम. ओके, तापरे ये है 1 सपोज 1 ए एंड ये सपोज हो गया बी, है कि नहीं. तो ये एम्पुला क्या हो जाएगा 2. So the ampulla of the uterine tube is the widest, longest portion, making up about the lateral 2/3 of its length. Lateral 2/3 of the length. Okay. Now from the infundibulum, the uterine tube extends medially and eventually inferiorly and attaches to the upper outer corners of the uterus. तो ये आपका थर्ड पार्ट है. ठीक है ना. तो जो थर्ड पार्ट है ये, इसको हम लोग यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं, या इसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलेंगे, इस्थमस, है कि नहीं. तो इसको आप यूट्राइन पार्ट बोल सकते हो या इस्थमस बोल सकते हो. ठीक है. अगर हम इधर से उधर जाएंगे तो सबसे पहले होगा इस्थमस, उसके बाद होगा एम्पुला एंड उसके बाद होगा फनल. ना एम्पुला में हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड में लिखना है. ओके, तो क्या लिखना है, इट इज जनरली द site of fertilization of sperm and ovum. क्यों? As it is the widest part. ठीक है. तो since ये widest part है, okay, it is the site of fertilization of, okay, इसमें जनरली को डॉट डॉट लगा देते हैं. हाँ चलो, इट इज जनरली द, या इसको और थोड़ा इधर ले आते हैं. एक्चुअली वाई यू विल राइट जनरली, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग कभी भी रिजिड नहीं होंगे. ओके, ये बाबा रणछोड़ दास बोल चुके हैं. ओके, इट इज जनरली द साइट एनो तम एनसीईआरटी जिंते लिखी दिला एम्पुला इस्थमिक जंक्शन. अबे इधर उधर हो गया ना फर्टिलाइजेशन तो आपको सुसाइड करा दे. ऐसा कोई होता है? वो तो फर्टिलाइजेशन जरूरत पड़ा तो उधर होगा. अरे जहां मिलन होगा वही फर्टिलाइजेशन होगा ना. हाउ आर यू सो रिजिड. तो फिर अभी वो चेंज होके एम्पुला बन गया. पहले वो 10 साल एम्पुला इस्थमिक जंक्शन ही बताते थे. अरे कोई पूछ के होगा ना, वहां कोई बारात लगा है तो वो तो जा रहा है जहां मिला होगा वहां फर्टिलाइजेशन होगा. बट प्रोबेबिलिटी क्यों एम्पुला में ज्यादा है? क्योंकि वो बहुत वाइड एरिया है. तो नया, सो लाइक दैट. So this is the concept of the uterine tubes. Now इसका हिस्टोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? माने हाउ इट मूव्स. ओके, सो इसीलिए, ओके, हाउ इट मूव्स. तो इसलिए एक्चुअली देखो यहाँ एक और चीज भी मैं बता रहा हूँ. तो एक्चुअली ये मैं जो है इधर हम लोग उसको, इसको ना हम लोग यूट्राइन पार्ट ही बोलेंगे. इसको भी हम नीचे ले लेंगे, इधर हम थर्ड को लाएंगे. क्योंकि ना एज आई टोल्ड यू इस्थमस इज सेपरेट पार्ट, बट एनसीईआरटी सेम पार्ट लिखता है. बट दिस इज एक्चुअली द थर्ड पार्ट. इस्थमस फोर्थ आ जाएगा यूट्राइन पार्ट, जैसे मैं बता नहीं रहा था कल. बट एनसीईआरटी आपको इस्थमस ही कोई तो ये यूट्राइन पार्ट है. ठीक है, यूट्राइन पार्ट. ओके, तो द इस्थमस इज द मीडियल पार्ट, मजी पार्ट है. ओके, सो इसलिए यूट्रस बीच वाला पार्ट है इस्थमस. तो ये आपके 4 अलग अलग पार्ट्स हो गए किस चीज के. तो दे आर द 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूट्रस. तो आ गया इन्फंडिबुलम, उसमें होता है ऑस्टियम, उसके बाद आपका फिम्ब्रिएटेड एंड, इसलिए उसको फिम्ब्रिया बोल सकते हो. तापर एम्पुला. ओके, तो वी कैन राइट द एम्पुला. उसके बाद isthmus and ultimately uterine part.
So these are the different parts of the uterus. Okay, अब हम लोग उसके अंदर का झांकेंगे स्ट्रक्चर थोड़ा कि किस तरह में वहां मूवमेंट होता है. Okay, so now okay, so उसके बाद the mucosal lining of the uterus. Okay, the mucosal lining of the uterine tube consists of epithelium and lamina propria. Okay, the epithelium contains, ये देखो आ गया मजा, ciliated, है ना, एवढा जाने दरकार है, ciliated simple columnar epithelium, yeah, cells, which function as a ciliary conveyor belt to help move a fertilized ovum or secondary oocyte within the tube towards uterus, and non-ciliated, okay, PEG cells, okay, non-ciliated PEG cells, okay, within the tube towards the uterus, and non-ciliated PEG cells which have microvilli. PEG cell माने क्या, ये खूंटा जैसे होगा, छोटे छोटे cells होंगे which have microvilli and secrete a fluid that provides nutrition for the ovum. इसलिए इसमें आपके दो तरह के cells हैं. Again very important, so we will highlight that point. So ये है आपका simple ciliated columnar epithelium. Okay, now उसमें आपका कन्वेयर बेल्ट जैसा काम करता है. ओके, इसमें आपके कौन कौन से सेल हैं, ट्यूबर्स एंड ये जो नॉन सिलेटेड पेग सेल्स. ओके, तो पेग सेल का काम खिलाना पिलाना है, सिलिएटेड का काम क्या है, वो कन्वेयर बेल्ट जैसा काम करता है. राइट, तो आपके दो तरह के सेल्स है. तो सपोज आई ट्राई टू ड्रॉ ए डायग्राम, तो इसको हम एक थोड़ा सा डायग्राम बना देने की कोशिश करेंगे. तो सपोज ये आपका तो नाउ सपोज व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन. फाइन, तो सपोज ये आपका उसका जो लेयर एपिथेलियम है, तो ये एपिथेलियम होगा. ओके, जब दिस इज द लेयर ऑफ जो सपोज दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग बना लेते हैं, एंड उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर कलमनर सेल्स बनाएंगे. ओके, कलमनर सेल्स, ठीक है. सो दीज आर कलमनर सेल्स. फाइन, सो कलमनर सेल्स. ओके, कलमनर सेल्स. सपोज कुछ इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे. फाइन, तो ये आपके कलमनर सेल माने कौन हो, तो दैट इज एक्चुअली योर सिलिंड्रिकल. देखो ना, जो आपका जो साइज है दैट टॉलर देन ब्रॉड, है कि नहीं. तो ये एक सेल ले लेते हैं. फाइन, उसके बाद ये एक और सेल ले लेंगे, ये उसके पास रखेंगे, है कि नहीं. तो थोड़ा दूर, थोड़ा सा दूर रखेंगे. एक्चुअली इसको भी हम इसको यहाँ लाएंगे थोड़ा सा दूर. सो नाउ अब इन सेल्स में ये एक प्रकार के सेल है, एंड अब हम एक और प्रकार का सेल बनाएंगे. ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग सिलिया बनाते हैं. सो नाउ वी विल मेक सिलिया. सो वी विल मेक इट थिनर. तो ये जो एरियाज है इसमें आपको क्या मिलेगा, ये सब सिलिएटेड होंगे. फाइन, सो देयर आर लॉट ऑफ सिलिएटेड सेल्स. फाइन, तो ये आपका सिलिएटेड सेल्स है. उसके बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, खूंटे जैसे सेल्स बनाएंगे. ओके, तो उसको थोड़ा सा ना, ये जो है, ये जो सेल्स है थोड़ा सा हम लोग पेग लाइक बनाएंगे. ओके, एंड इसमें क्या होगा, माइक्रोविलाई होगा.
Fine. So now these are the cells. Okay, these are the cells. अब इसमें क्या होगा, ये आपका माइक्रोविलाई होगा, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या करेगा, अगेन सरफेस एरिया बढ़ाएगा, है कि नहीं? सो हाँ बोलो। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, वही बोल रही थी। तो इसलिए ये आपका सिलिएटेड सेल्स है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिलिएटेड सेल्स फॉर मूवमेंट, है कि नहीं? एंड ये जो है पेग सेल्स है, ये सब आप स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। पेग सेल्स फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑफ एग और जाइगोट, ठीक है? तो इसलिए ये आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ द यूट्रस है। ओके, सो नाउ इफ आई कैन शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू। ओके, अगर वो दिख रहा है डायग्राम में तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, सो लेट मी शेयर योर स्क्रीन। So this is from Totora. देख रहे हो? So now look at this screen, a very beautiful screen. So this is the fallopian tube epithelium. Okay? देख रहे हो? तो ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। सोचो, ये बहुत महंगा डायग्राम है। So now what are these? These are the ciliated cells, and what are these? These are the PEG cells. आया समझ? तो देख रहे हो, तो ये नरिशमेंट में मदद करता है एंड ये आपका मूवमेंट के लिए मदद करता है। चलिए, हो गया? तो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर डायग्राम, पढ़ाई। तो ये हम लोग उसका जो डिस्कस कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू दी टिश्यूज, ठीक है? चलिए, सो नाउ अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? So now we were discussing about what? We were discussing about the fallopian tube. Now अब उस fallopian tube में आपका जो मसल्स है वो भी होगा, है कि नहीं? So जो मसल्स है वो भी आपको फैसिलिटेट करते हैं किस चीज में? मूवमेंट। तो इसीलिए the muscularis layer is composed of an, ये बड़ा दुखी करता है ये लेयर। The muscularis layer is composed of an inner circular layer of smooth muscles and an outer layer of longitudinal muscles, ठीक है? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में जो ऊपर वाला था हमने क्या डिस्कस किया था? सिंपल एपिथेलियम। उसके नीचे भी तो आपका मस्कुलरिस होगा ना। अरे जैसा यूट्रस वैसा आपका फेलोपियन ट्यूब भी होगा। तो जैसे उधर पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम होता है, इधर भी वैसा होगा। ओके, तो सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड एन आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो लॉन्गिट्यूडिनल आउटर लेयर ऑफ longitudinal smooth muscles. Okay, peristaltic contraction of the muscularis and the ciliary action of the mucosa help in the movement. तो इसलिए सिर्फ सिलिया के द्वारा मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका जो मस्कुलरिस कोट भी है वो भी उसके मूवमेंट में मदद करता है। अंडरस्टैंड? तो इट आल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट। ये बड़ा बदतमीज है, इसको मैं ठीक करता हूं तो फिर वो वैसे ही हो जाता है, तो वैसे ही रहे, लेकिन नहीं। एडिटिंग इसे एक्चुअली इथे जूम रो ब्लैकबोर्ड रे एडिटिंग टा नहीं ना, आउट के इधर यदि भलो करता अच्छा होता। अभिषेक एंड ऑल, ये जो को ना जो आदित्य एंड ऑल, जो लोग पेड वर्जन यूज करते हैं, अगर उनका बोर्ड अच्छा होगा तो मेरे को बोलना, तो मैं भी पेड वर्जन ले लूंगा। इफ द बोर्ड इज बेटर देन दिस, अदरवाइज आई विल टेक पेड वर्जन, है कि नहीं? तो इसलिए काइंडली मॉनिटर एंड टेल मी। ओके, ये जो आदित्य एंड ऑल, यू आर गोइंग टू सत्यव्रता एंड ऑल ना, तो दे विल, इफ दे आर यूजिंग इट लाइक दैट, लाइक जेजेस, तो आप बताना मेरे को थोड़ा सा। अगर पेड वर्जन में वो फैसिलिटीज है तो हम लोग भी ले लेंगे।
अब नहीं है तो फ्री में लेने का क्या, अननेसेसरी लेके फायदा क्या है, मैं कौन कहूँ। हो गया। सब सेम था वर्ब है। हाँ नहीं, स्टिल अगर थोड़ा भी बेटर होगा ना, क्योंकि इसमें यूज करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। यू सी आई एम एक्चुअली, आपको उसका आउटपुट दिख रहा है बट अंदर का मेहनत बहुत है। ये बार बार वो स्क्रीन मेरे को डिस्टर्ब करता है ऊपर वाला। चलिए, जो मैं लिखने जाता हूँ तो वो बीच में आ जाता है काला वाला, तो तुमको शायद दिखता नहीं है बट वो मुझे दिखता है। चलिए, तो अब हमने एनाटॉमी पार्ट डिस्कस कर लिया। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द एनाटॉमी पार्ट। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट। तो अब हमने जेनाइटल ट्रैक्ट खत्म कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एक खतरनाक पार्ट। सो दैट इज कॉल्ड द, आई डोंट थिंक आई विल डिस्कस दैट टुडे। आज थोड़ा इधर उधर का बातें करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली योर वर्टिकल सेक्शन of the ovary. Okay, so this is very very important. Yeah, ultra structure, okay, of the ovary. Sorry, I'm sorry. Actually, माधव बदमाश कर रहा था, इसके लिए मैं रखा है। तो VS of the ovary, ultra structure of the ovary, okay. सो इसीलिए इसको हम लोग आज देखेंगे बस, तो वी मे नॉट रीड इट टुडे। ओके, चलिए। सो बिकॉज इज अ बिग टॉपिक, तो अगर मैं सिर्फ जनरल डिस्कशन कर दूं तो आप देखोगे दैट अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे, है कि नहीं, तो इफ यू सी इन सेक्शन, जो ओवरी का एक अगर आप सेक्शन देखोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आई एम डायरेक्टली शोइंग यू द डायग्राम। तो कल हम लोग कुछ बढ़िया डायग्राम देखे थे, बट आज एक सिंपल डायग्राम देखेंगे जो आपको स्लाइड में दिखेगा। सपोज यू आर सीइंग ए स्लाइड, तो यू विल सी दिस डायग्राम। सो दिस डायग्राम इज अगेन फ्रॉम टटोरा। फाइन। तो ये आपका जो ओवरी का सेक्शन है। नाउ अब ये जो डायग्राम है, ओके, सो दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी। तो ये आप ध्यान दीजिए, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, तो ये आप देख रहे हो जर्मिनल एपिथेलियम। तो ट्यूनिका आल्बुजिनिया किधर है, देखो ट्यूनिका आल्बुजिनिया, ये कहीं खास दिख नहीं रहा। तो ये आपका, हाँ दूसरी एक्चुअली आप मैग्नीफाई करो दूसरी बार। सो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो दिस इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम, है कि नहीं। तो जो कि अभी एक मिसनोमर है, राइट। तो दैट्स अ मिसनोमर। तापर सेकंड आसी जाउची ओवेरियन कॉर्टेक्स, फिर थर्ड आ जाता है ओवेरियन मेड्यूला। तो ये हमारा नंबरिंग सीक्वेंस है। सो दिस इज नंबर 1, ओके। तो ये आपका नंबर 1 पॉइंट है, राइट। इसको हम लोग फर्स्ट नंबरिंग करेंगे। सेकंड तो हमें लिखी हुआ कॉर्टेक्स, ओके, तो आप उसको सेकंड नंबरिंग करेंगे। तापर थर्ड नंबरिंग करिबो मेड्यूला, ठीक है। सो थर्ड स्ट्रक्चर जो है आपका मेड्यूला है। दिस एंटायर आउटर मोस्ट पार्ट, इट इज द कॉर्टेक्स। नाउ अब उस पे हम फॉलिकल्स पे एक्टिवेट होते हैं। सो नाउ उसके बाद वी विल गो टू द फॉलिकल स्टेज। तो प्राइमोडियल फॉलिकल ये आपका नहीं है। सो एक्चुअली दिस इज मिसिंग। तो हमारा एनसीईआरटी 8 आरंभ होची, तो हमें 8 आरंभ करिबा। तो एक्चुअली ये ए होना चाहिए, ये आपका बी होना चाहिए, बट आई विल ऑल्सो एनसीईआरटीआइज माई लेक्चर। तो ये ए हो जाएगा एंड दिस विल बिकम बी। तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा और नीचे ले जाया जाए। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड इसके बाद टर्शरी फॉलिकल कहीं दिख रहा है क्या? दे आर मिसिंग द टर्शरी फॉलिकल, स्ट्रेट अवे दे आर कमिंग हियर। सो दिस स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एक्चुअली कहेंगे क्वाटरनरी फॉलिकल। तो क्वाटरनरी, इसको डी बोलेंगे, डी, ओके। ए बी सी इज मिसिंग एक्चुअली, तो दिस इज क्वाटरनरी फॉलिकल, ओके।
तो ये आपका क्वाटरनरी फॉलिकल होता है। फाइन। सो ये दिस इज बेसिकली, इसको हम लोग ये जो मैच्योर फॉलिकल लेके नहीं 8 लेके दवाई बढ़िया, तो दिस इज एक्चुअली क्वाटरनरी फॉलिकल, ओके, कॉमा या स्लैश। तो ऑन LH स्टिम्युलेशन, तो ये क्या बन जाएगा, राइट या ग्रेविड, ओके, राइट या ग्रेविड या ग्राफियन follicle. Graphian is after the name of Regnier de Graaf. ओके, तो रेगनियर डी ग्राफ के नाम पे इसका नाम रख दिया गया क्या, ग्राफियन फॉलिकल। इसको आप मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हो। ओके, क्या कलर चेंज नहीं हो रहा है, चलो हो गया। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मैच्योर फॉलिकल। नाउ इधर आपका ओव्यूलेशन हो गया, तो इसलिए इस एरो में, तो यहाँ एरो में कौन आएगा एक्चुअली आपका, इधर हम लोग लिखना चाहिए LH, ठीक है। इधर क्या लिखना चाहिए इस एरो पे, FSH। देखो जो कितने चेंज करे हम पड़ुची डायग्राम रे टू गो फॉर कंसेप्ट। तो जब तक आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थ बुझिला, तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तो ये जो सीरीज है ये FSH सीरीज है, ये आपका LH आ गया। तो LH का एक काम है राइट फॉलिकल बनाना, एंड एक और काम है ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करना। तो दिस जॉब इज आल्सो LH, ठीक है। तो LH जब आप ट्रीट करोगे तो आपका ओव्यूलेशन LH रा बिल्कुल 24 घंटा पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका LH आ गया। तो अब इसके बाद ये बन जाएगा ABCD, ये है E। तो दिस इज E। तो इस फॉलिकल को हम क्या कहते हैं, E या कॉर्पस हिमोरेजिकम। तो यहाँ क्या भर जाएगा, इस गड्ढे में भर जाएगा आपका ब्लोड, राइट। तो इसके अंदर भर जाएगा ब्लोड, एंड ये आपका कौन बाहर आ गया, so this is the queen of your, this is the queen of the sperms or the secondary oocyte. तो ovulation discharges a secondary oocyte, and इस secondary oocyte को हम लोग एक नया नाम से देते हैं, that is called ovum. Now suppose Surya is going to marry at 12:30 night today, so she has to change her dress. So please leave the class and go to naturals, okay, because आप ऐसे थोड़ी उठ के शादी में चले जाओगे। So now you are secondary oocyte. अब आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, सुसज्जित करना पड़ेगा, एंड ओवम बनाना पड़ेगा। So this ovum is what? This ovum is also called the bride. Okay? Yeah, the functional female gamete. Understood? इसलिए who is in the ovum? A secondary oocyte. ठीक है। फिर इधर LH है, तो LH जब है तो LH क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा आपका कॉर्पस हिमोरेजिकम टू कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सो दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, एंड ये आपका क्या सीक्रेट करेगा, दिस विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो देख रहे हो जेजेस का डायग्राम का मतलब समझ रहे हो, हम हर चीज लिख देते हैं। तो ये जो फॉलिकल लोग क्या सीक्रेट करते हैं, आपका सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, दे विल सीक्रेट व्हिच हार्मोन, इधर लिखेंगे सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, व्हिच सीक्रेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन आप बोल सकते हो, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, ओके। तो ये क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओके। सो दिस इज द फंक्शन। नाउ
अब if there is no pregnancy, तो या if there is no HCG, सुनिए आपका जो कॉर्पस लुटियम वो 10-12 दिन का प्रोजेस्टेरोन लेके भाग जाएगा, ठीक है। अब आपने तैयारी कर लिया, अब जब तैयारी कर लिया तो क्या होगा, आफ्टर 10 days द प्रोजेस्टेरोन विल फिनिश, है कि नहीं। तो 10 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन खत्म। तो जब प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा, आप प्रोजेस्टेरोन कहां से लाओगे, आपका कॉर्पस लुटियम बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए HCG लाना पड़ता है। HCG इज सिमिलर टू LH, याद रखना, बट नॉट LH, क्योंकि HCG कहाँ आता है, इफ देयर इज नो HCG फ्रॉम प्लेसेंटा, क्योंकि LH अब नहीं आएगा। LH कब आएगा, अगले साइकिल में, तो इस साइकिल में अब LH नहीं आने वाला है। तो अगर आपका HCG नहीं आता है प्लेसेंटा से तो क्या होगा, सो नाउ आपका जो कॉर्पस लुटियम ये बन जाएगा क्या, डीजेनरेट कर जाएगा एंड अल्टीमेटली बन जाएगा क्या, कॉर्पस एल्बिकेंस, एंड ये एल्बिकेंस एक दाग बन के रह जाएगा। अंडरस्टूड। तो इसलिए इसका भी हम लोग नंबरिंग कर देंगे, कॉर्पस ह्यूमेरोजिकम ई, तो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा एफ, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या हो जाएगा जी, है कि नहीं। तो कॉर्पस एल्बिकेंस विल बिकम जी, ठीक है। अब देख रहे हो, यू सी दिस डायग्राम इज फ्रॉम टॉर्टोरा ग्रेबोव्स्की, फिर भी जेजेस ने कितना छेड़ा है देखा। तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए टीचर टॉट क्लास एंड ए डांसिंग टीचर टॉट क्लास। क्लियर। चलिए अभी भी देखो हम अभी भी हम देखिए कितना बदल सकते थे। इधर एक और चित्र होना चाहिए, वो है नहीं, तो लाइक दैट मींस देयर इज नो टर्शियरी फॉलिकल हियर एंड सो ऑन। चलिए, तो आई विल शो यू ऑल द फॉलिकल्स बिकॉज टुडे विल नॉट रीड एनी मोर, तो अब हम सिर्फ फोटो देखेंगे। So now these are the different follicles. देख रहे हो? Have you ever seen these drawings? So these are the different follicles. तो सर आप आज तक का PDF नहीं भेजे, आपने बोला था। कौन सा PDF? सर इसी बुक का। वो तो भैया वो PDF नहीं जा सकता, मैं कहाँ से भेज दूँ। चलिए, so this is the primordial follicle, है कि नहीं? And इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उधर सरकाना पड़ेगा। ये प्राइमोडियल फॉलिकल है एंड ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है। तो एनसीईआरटी एक्चुअली प्राइमोडियल फॉलिकल कथा की कहूँ तो आप प्राइमरी फॉलिकल से शुरू करते हो। तो टेक्निकली आप क्या समझेंगे, बोलिए कि यही आप कहेंगे ना, हमें जोड़ा तमारा प्राइमोडियल लिखिबा, वो एक्चुअली तुम प्राइमरी लिखोगे, राइट। सो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्राइमरी फॉलिकल अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट एनसीईआरटी, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ अब प्राइमरी फॉलिकल में आप देखिए क्या क्या है, तो आप फटाफट उस चीज को ध्यान दीजिए। इन द प्राइमरी फॉलिकल व्हाट ऑल यू हैव, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ये जो है ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी oocyte, मतलब इसमें मियोसिस अभी शुरू नहीं हुआ है, ओके। मियोसिस स्टार्ट हो गया है बट आपका जो G1 G2 चल रहा है। नाउ ये आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं जो इस एग को बाहर के शत्रुओं से बचा के रखते हैं। दिस इज द स्ट्रोमल सेल, कनेक्टिव टिश्यू सेल। ये थीका बनाना शुरू कर रहे हैं, अभी बनाना नहीं है, दे आर बीइंग मेड, एंड ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नाउ इधर आप देखिए सेकेंडरी फॉलिकल में मेनी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए। ये फॉलिकुलर सेल जहाँ, ग्रैन्युलोसा सेल तहाँ, एटी गोटे लेयर अच्छी, एटी मेनी लेयर्स हो गए।
ठीक है, प्राइमरी oocyte में क्या हुआ है, ये FSH ट्रीटेड है। देखो इधर भी जेजेस के काम का बहुत चीज है, तो ये FSH ट्रीटेड फॉलिकल है, इसका मतलब मियोसिस रीस्टार्ट हो गया है, अंडरस्टूड। बट यहाँ मियोसिस रीस्टार्ट नहीं हुआ है, तो दिस इज FS ट्रीटेड। तो प्राइमरी oocyte मतलब इसमें क्या हुआ है, मियोसिस 1 रीस्टार्ट्स, ठीक है जी। तो मियोसिस 1 रीस्टार्ट्स, ये सब आप ऑलरेडी सेल डिवीजन में पढ़ चुके हो, तो मैं नहीं पढ़ाने से भी चलेगा ना। तो अब ये जो है आपका जोना पेलुसिडा भी आ गया, देखो। सो दिस इज द जोना पेलुसिडा एंड ये आपका थीका फॉलिक्यूल भी आ गया, राइट। सो दिस इज द थीका फॉलिक्यूल। चलिए, तो ये एक सेव सर किया। हाँ बोलो। सर ये कौन सा एडिशन वाला है? अब एनी एडिशन